So hello everyone, Jai Hind, Namaskar. This is your Sir Gaurav Tiwari, and in our series Complete NCERT Decoding, we are going to decode a new chapter from class 8th Geography NCERT, which is none other than Land, Soil, Natural Vegetation and Wildlife Resources. Students, we have gone through what resources is all about in our last chapter, Understanding Resources. Resources, as we all know that everything that satisfies human need is called as resource. So let us focus on ourselves to the most important resource present in our environment. हमको किन चीज़ों पे फोकस करना है इस चैप्टर में कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जिन्हें हमारे एनवायरनमेंट में हैं और हमें जिनके बारे में कुछ जानकारी कम है या इनके बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और वो यही है जो हमारे चैप्टर का नाम है लैंड, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. So without further ado, let us start our interesting chapter of decoding for today, which is Land, Soil, Natural Vegetation and Wildlife Resources by Engineer Gaurav Tiwari. Students, in this chapter what we will going to learn is about land as a resource, how land is used, conservation of land resource, soil as a resource, mitigation mechanism, factor of soil formation, conservation of soil, water as resource, problem of water availability, conservation of water resource. That means we are going to discuss each and every resource, its use and the ways of its conservation. अगर सीधी भाषाओं में कहा जाए, आसान शब्दों में कहा जाए, तो हमको इस चैप्टर में लैंड, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के रिसोर्स होने के कारण किस चीज़ में वो यूज़ होते हैं वो पढ़ना है और उनको किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है उसको पढ़ना है. तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. आइए. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इज़ लैंड. लैंड एज अ रिसोर्स. Students, land is among the most important resource present in our resources list. It covers about 30% of total area. 90% of the world population covers 30% of the land area, and remaining 70% of the land is either sparsely populated or uninhabited. Now the question comes is that how the land resources is important just because of its uses. Land has many uses. Land is used for different purposes like agriculture, forestry, mining, building houses, roads, setting up industries, and the uses of land can also be classified on the basis of factors like topography, soil, climate, minerals and waters. अच्छा, लैंड जो रिसोर्सेज है ना उसके क्लासिफिकेशन भी अलग अलग तरीके से किए जा सकते हैं. जैसे दो तरीके इंपॉर्टेंट है आप अगर कहें तो, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड. प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड जो ओनरशिप के बेसिस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्लासिफिकेशन किया है लैंड का, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है. प्राइवेट लैंड इज़ द लैंड दैट इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूजेस लाइक लिविंग, स्टेइंग एंड स्टोरिंग, while community land is owned by a community for common uses like collection of fruits, collection of nuts and social activities, etc. Now the important note is that community land is also called as common property land. कम्युनिटी लैंड को कॉमन प्रॉपर्टी लैंड भी कहा जाता है दूसरी भाषा में. आइए एक नई टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज. स्टूडेंट्स, अभी क्या हो रहा है कि हमारे देश में या किसी भी देश में वर्ल्ड में रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है, पर उसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है कि वो फिर उस रिसोर्सेज का पूरी तरह से नुकसान हो रहा है या पूरी तरह से खात्मा कर दे रहा है. दैट मीन्स वो रिसोर्स जो है वो फिर से किसी काम में आने वाला नहीं हो पा रहा है. उसके पीछे का कारण क्या है? डिफॉरेस्टेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना. हमारे देश के किसान इतना फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ज़मीन में कि सॉइल पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है. सो हाउ वी कैन कंजर्व आर लैंड रिसोर्सेज. So some important points that prevent land from pollution. Disposal of hazardous radioactive waste in the soil must be prohibited. The use of chemical fertilizer and pesticides should be minimized as far as possible. जितना कम से कम हो सके फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए. By reusing, recycling of solid waste such as paper, metal parts और plastic, glass articles. जितने भी प्लास्टिक के ग्लास आर्टिकल्स होते हैं, मेटल पार्ट्स होते हैं, इनका रीयूज़, रिसाइकल करो इनका. ताकि क्या होता है कि जब ज़मीन में छूट जाते हैं ना तो उस ज़मीन को भी गंदा करते हैं और ये कभी ख़त्म भी नहीं होते. तो आप इनका रीयूज़ करेंगे तो ये किसी न किसी काम आते रहेंगे और ज़मीन में मिलेंगे नहीं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉइल इरोजन शुड बी प्रिवेंटेड.
सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना ही होगा, और उसको प्रिवेंट करने का केवल एकमात्र तरीका है कि आप एफॉरेस्टेशन करें, लैंड रिकमराइजेशन करें, है ना। उसके अलावा ओवर ग्रेजिंग को स्टॉप करें। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण आप कंजर्व कर सकते हैं लैंड रिसोर्सेज को। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रिसोर्स विच इज़ वाटर। वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स प्रेजेंट इन आवर रिसोर्स लिस्ट। इतना इम्पॉर्टेंट है वाटर कि जल बिना तो किसी का काम भी नहीं चलता है। तो आप देखते हैं कि रिसोर्स जो वाटर है वो इतना इम्पॉर्टेंट है क्यों, ऐसी क्या चीज़ है जो वाटर को इतना इम्पॉर्टेंट बनाती है। सो वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। अगर आपको नहीं पता होगा तो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ की 3/4 भाग जो है ना वो वाटर से कवर्ड है, इसीलिए हमारी अर्थ को वाटर प्लेनेट भी कहा जाता है। बट उतने सारे पानी का होने के बावजूद भी केवल फ्रेश वाटर 2.7% ही है, और उसमें से भी 70% है ना वो आइस शीट्स और ग्लेशियर्स में है, एंटार्क्टिका में। ओनली 1% ऑफ द वाटर इज फिट फॉर ह्यूमन यूज़ एंड विच इज़ अवेलेबल इन अंडरग्राउंड। फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो फ्रेश वाटर है। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर बी सब्सट्रैक्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि वाटर को है ना तो आप बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, वो बिल्कुल एक फिक्स्ड अमाउंट में इस अर्थ में प्रेजेंट है, और वो अपने फॉर्म को एक के बाद एक चेंज भी करते रहता है ना। अब हमने देखा होगा कि वाटर रिसोर्सेज के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। फ्रेश वाटर इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक सॉइल एंड एयर और सॉइल जैसे ही रिन्यूएबल है, बट इसका क्या हो रहा है कि इसकी अवेलेबिलिटी के साथ भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हमको फेस करने को मिल रही है। अब हम ये देखते हैं कि वाटर का यूज़, क्योंकि इम्पोर्टेंस क्यों है वाटर का, क्योंकि उसके यूज़ के कारण क्या होता है कि एग्रीकल्चर में इट इज़ एस्टिमेटेड, ये अनुमान लगाया गया है और बिल्कुल सही तरह से अनुमान लगाया गया है कि 69% ऑफ द वर्ल्ड वाइड वाटर यूज फॉर इरीगेशन, कि पूरे वर्ल्ड वाइड वाटर का 69%, जो कि हमने अभी देखा था कि केवल 1% पीने योग्य, उसमें भी 69% वाटर को क्या कर रहे हैं वो इरीगेशन के लिए काम में ले रहे हैं। 15 से 35% जो है वो अनसस्टेनेबल विड्रॉल से बीइंग के। इसलिए आपको एग्रीकल्चर में भी पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इंडस्ट्री में तो खैर पानी की ज़रूरत पड़ती है, और वो तो इतना करते हैं कि अपने वेस्ट को भी पानी में ही बहा देते हैं, वो जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है। अब देखते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल का भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस है रिसोर्स के रूप में, क्योंकि जितनी भी सारी अपर मोस्ट लेयर हैं क्रस्ट की, उसको कंटेन करने वाले जितने भी मिनरल्स हैं, फॉसिल्स हैं, इन सबको कंटेन करने वाली जो लेयर है या जो एक मिनरल है, जो एक चीज़ है, उसको हम सॉइल ही बोल सकते हैं। तो व्हाट इज़ सॉइल? The soil is a thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. It is closely linked to the land. Land से बिल्कुल closely link होती है। Landforms determine the type of soil, और जिस तरह का लैंडफॉर्म होगा उसी तरह के सॉइल को भी डिफाइन करता भी है। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बनी होती है, जैसे मिनरल्स एंड वेदर्स रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। नाउ factors of the soil formation, but before starting factors of the soil formation we should study uses of soil, कि soil का इस्तेमाल कहाँ पे किया जा सकता है। तो देखो, soil का इस्तेमाल वॉक करने किया जा सकता है, प्लांट्स को उगाने के लिए किया जा सकता है, ग्लास के चीज़ों को बनाने के लिए भी, पोट्स को बनाने के लिए, किसी चीज़ को बोरो करने के लिए, घोंसला बनाने के लिए, मतलब क्या नहीं है जहाँ पर सॉइल नहीं है। इम्पोर्टेंट सॉइल का हर जगह है, जिधर भी देखा उधर पाया, तो हर जगह पे देखते हैं वहाँ पे हम सॉइल पाते ही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात भी पढ़ते हैं कि फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या, किस कारण से सॉइल फॉर्म की जाती है। तो द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर नेचर ऑफ द पेरेंटल रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। कैसे? जैसे टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स एंड टाइम टेकन। कौन कौन सी चीज़ों पे सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंड करता है? पेरेंटल रॉक, रिलीफ, फ्लोरा एंड फोना, क्लाइमेट एंड टाइम। ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिन पे हमारा सॉइल का फॉर्मेशन डिफाइन किया जाता है। बट इसी के कारण क्या हो रहा है, इंसान की गलती, ह्यूमन इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के कारण क्या हो रहा है कि सॉइल फिर नुकसान में या फुल टेंशन में आ गई है। इसीलिए हमारे देश की सरकार भी अलग अलग योजनाएं चलाती है कि सॉइल की हेल्थ की जांच करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बना दिया, और वो सब के पीछे का कारण कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल को कंजर्व करके रखना ही पड़ेगा। अगर आज हम सॉइल को कंजर्व करके नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में हम क्या खाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वाई टू कंजर्व? बिकॉज डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल इज़ हैपनिंग एक्चुअली।
सॉइल इरोजन हो रहा है, डिप्लीशन ऑफ द मेजर थ्रेट्स टू द सॉइल रिसोर्सेज। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सॉइल डिग्रेडेशन कर रही हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आएंगी यहाँ पर। डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स। इन सब के कारण क्या हो रहा है कि हमारी सॉइल इतनी ज़्यादा हद तक गंदी हो चुकी है कि हमें उन सब चीज़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं हम सॉइल का? बहुत सारी चीज़ें जिनके कारण हम कंजर्व कर सकते हैं, जैसे मुल्चिंग हो गया, काउंटर बैरियर्स हो गया, रॉक डैम्स हो गया, टेरेस फार्मिंग हो गया, इंटरक्रॉपिंग हो गया। इन सब चीज़ों के बारे में आप अपने हैंड रिटन नोट्स में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आप इन सब की चिंता ना कीजिए। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन द लिस्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं। फ्लोरा एंड फ्लोना, दोनों चीज़ें इसमें, फाउना और फ्लोरा दोनों कवर होने वाले। दैट मीन्स फ्लावर्स एज वेल एज एनिमल, दोनों चीज़ इसमें कवर होने वाली है। इसीलिए वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की गिनती सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज में की जाती है और की जानी भी चाहिए। So natural vegetation and wildlife exist only the narrow zone of contact of lithosphere, hydrosphere, atmosphere. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर की जो नेरो जोन होती है ना, जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, और जिसके इंटरेक्शन में केमिकल और फिजिकल इंटरेक्शन जो होता है, जहाँ पे जिस एरिया को हम इकोसिस्टम बोलते हैं, वो वहीं पे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का एक ओरिजिन होता है। और वो ओरिजिन होता है तो वो हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड अस मैनी थिंग्स, timber, shelter to animals, oxygen, store water, fruits and nuts, medicinal plants, not what। ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें प्रोवाइड नहीं करते? एक्चुअली वो हमारे लाइफ का एक इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि उसके बिना हम अपनी लाइफ को कहीं से कहीं तक इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि अगर इस दुनिया की जितनी भी मधुमक्खियाँ हैं, अगर वो ख़त्म हो गई तो फिर इन दुनिया के सारे इंसान जो हैं वो भी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए आप कि कितना हद तक ये चीज़ें हमारी लाइफ से जुड़ी हुई हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज डिफॉरेस्टेशन इज कॉजिंग अ रिस्क टू फ्लोरा एंड फ्लोना। डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हो रहा है कि फ्लोरा एंड फ्लोना को बहुत ही ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ रहा है। इलीगल ट्रेडिंग हो रही है, उसको भी रोका जाना चाहिए। रूल्स मेड किए जाने चाहिए उन सब चीज़ों को कंजर्व करने के लिए। कई कई देशों में तो अलग अलग जानवरों की खाल का इस्तेमाल होता है, हाथी के दांत का इस्तेमाल होता है, मोर की गर्दन का इस्तेमाल। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके चमड़ी का इस्तेमाल करके वो अलग अलग आभूषण बनाते हैं, कहीं कहीं दवाइयाँ भी बनाते हैं। तो वो सब चीज़ों को पूरी तरह से रोकना चाहिए, क्योंकि इन सब गलतियों के कारण कई सारे जानवर जो हैं वो एक्सटिंक्शन की स्थिति में आ गए हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। स्टॉप किलिंग एनिमल्स हु आर एट द एज ऑफ एक्सटेंशन। उन सारे एनिमल्स को मारना बंद कीजिए जो एक्सटेंशन के एज पर हैं। गवर्नमेंट हैज़ मेड रूल्स टू प्रोटेक्ट देम। गवर्नमेंट ने उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए रूल भी बनाया है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको पूरी तरह से चैप्टर पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में इसमें आपने जो भी आपको लग रहा है कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल आप मुझे बताइए। मैं पूरी तरह से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।